welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. धन्यवाद वैभव और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ वैभव। India reaffirms its commitment to an open and inclusive WTO-led trading system, highlights need for export diversification and building resilient supply chains. GST rates revisions will have a significant impact on the agriculture sector, says Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan. And global gold prices jumped 3%, while Brent crude oil prices fall over 2% last week. भारत ने WTO के नेतृत्व में मुक्त और समावेशी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, निर्यात विविधता और लचीले सप्लाई चेन की जरूरत पर जोर दिया। जीएसटी की नई दरों से कृषि क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और पिछले हफ्ते सोने की वैश्विक कीमतों में 3% का उछाल, जबकि ब्रेंट क्रूड में 2% की गिरावट। India reaffirmed its commitment to an open, fair and inclusive multilateral trading system with the World Trade Organization WTO at the Shanghai Cooperation Organization SCO trade ministers meeting held in Vladivostok yesterday. India also stressed the scope to leverage the SCO's collective strengths for shared prosperity. In a statement, the Commerce and Industry Ministry said the country highlighted the need for export diversification, reducing dependency and building resilient supply chains. India also emphasized the importance of coordinated action to enhance trade flows, address vulnerabilities and support inclusive growth across the region. Representing the Commerce and Industry Minister, Additional Secretary Amitabh Kumar highlighted the importance of a development-centered agenda that includes a permanent solution on public stock holding for food security purposes, effective special and differential treatment for developing countries, and restoration of a fully functional two-tier WTO dispute settlement system. He also underlined the role of services trade and the temporary movement of skilled professionals in line with national laws and transparency to strengthen economic growth and support greater participation of MSMEs in the global value chains. On the digital economy, India proposed SCO work streams focused on fair, transparent and predictable regulatory frameworks, voluntary cooperation on best practices and capacity building for secure, innovation-led digitalization. It also showcased its achievements in digital public infrastructure DPI, including UPI for real-time payments, India's stack for identity and consent management, and ONDC for unbundled digital commerce. जी वैभव, और चले कुछ कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से शिवाजी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग आकार सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी डीएसपी स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मैंने एसआईपी स्टॉप कर दिया है, तो उसमें जो अमाउंट डिपॉजिट है उसको विड्रॉल करना ठीक रहेगा कि उसको इसमें रहने देना ठीक रहेगा? और दूसरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में भी हम गिफ्ट कर सकते हैं जैसे स्टॉक में करते हैं? थैंक यू। जो आपका पहला सवाल है कि डीएसपी और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आपने अपनी जो एसआईपीज है वो स्टॉप कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस ज़रूर थोड़ी ढीली चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, बट जब भी आप एक स्मॉल कैप फंड में करेंगे थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए करिए। और अगर जैसे अभी आपने इनमें एसआईपी स्टॉप भी करी है तो ये फंड्स में अभी इतनी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इनमें से जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आप उसको एग्जिट कर ले। तो आप अपना वो अमाउंट वहाँ पे बनाए रखें, उसको इन्वेस्टेड रखें
और अगर आप जो आपके जो इंक्रीमेंटल एसआईपीज है वो आप किसी दूसरे अच्छे स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं इन्वेस्ट। वहीं पे जो आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड्स भी हम लोग गिफ्ट कर सकते, तो ये पहले संभव नहीं था, लेकिन अब आप ये कर सकते हैं। आप कैम्प्स की वेबसाइट पे जाइए या फिर आप एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स का। सर्विसेज के अंदर होएगा, ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स में जाइएगा, वहाँ पे 3-4 तरीके की कैटेगरीज है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिकली गिफ्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप उस गिफ्टिंग का ऑप्शन को सिलेक्ट करके जिस भी आप पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं उनके फोलियो डिटेल्स डालनी होगी और कुछ ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होगी। वहाँ से आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं उनको डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। And we have another caller from Saharanpur. We are joined by Vivek. Vivek, welcome to Market Mantra. Please ask your question. मार्केट मिश्रा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं म्यूचुअल फंड में एटीएस से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो कोर पोर्टफोलियो है मैं पारस्परिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और सर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। तो जैसे हमने आपके एपिसोड में सुना है कि क्या हमें एक से अधिक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप रखने की जरूरत है, कि हमने अपने पोर्टफोलियो में ये 3 ही फंड रखे हुए हैं, क्या हमें इससे ज्यादा किसी फंड की आवश्यकता है? जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपका बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, आपने एक काफ़ी बढ़िया फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, एक मल्टी कैप फंड भी आपने काफ़ी अच्छा लिया है, और एक आपने वहीं पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ग्रोथ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए जो एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी है उसका फंड लिया है। तो अगर इसमें देखिए, हालांकि आपके जो पोर्टफोलियो में वो मेरे को एकदम इनफ डाइवर्सिफिकेशन लग रही है, फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है, कॉन्ट्रा भी है, तो आप बहुत ज़्यादा फंड ऐड मत करिएगा। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है तो आप इनमें एक आध फंड जोड़ सकते हैं। मे बी वो डिपेंड करते हैं कि वो अगर आप का जो भी आपका जो असेट एलोकेशन है, अगर आप थोड़ा सा लार्ज कैप फोकस रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे रखना चाहते हैं, मे बी एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा एक अग्रेसिव स्टांस और लेना चाहते हैं तो मे बी आप निपॉन इंडिया में डाल सकते हैं। नहीं तो आप एक स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन मत इन्वेस्ट करिएगा, बल्कि थोड़ा सा, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म के लिए और ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा रिटर्न्स के लिए। बट अदरवाइज भी इस पोर्टफोलियो में कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लग रहा है मेरे को। चलिए, कुछ और कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Welcome back to Market Mantra, and we are joined in by Sanjay from Mumbai. Sanjay, welcome to Market Mantra. Please ask your question. सर, वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है? दोनों ग्रुप में से अगर मैं एक फंड सेलेक्ट करूं, दोनों को मिलाकर एक फंड सेलेक्ट करूं, तो क्या डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी रहेगा? क्योंकि मैं दूसरे ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्टेड हूं, तो मैं एक वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड ऐड करना चाहता हूं। और दूसरा कोई एक अच्छा सा वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड का नाम बता दीजिए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं। जो वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स है, ये बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हो। वो इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी है वो ही डिफरेंट होती है। अगर हम लोग पहले बात करें कि जो वैल्यू फंड्स है वो ज़्यादातर करके उन स्टॉक्स को परचेज करते हैं जिनमें जो फंड मैनेजर है उनके हिसाब से जो उसका इस जो मार्केट प्राइस है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं कम है। अगर हम इसको एकदम आसान शब्दों में समझना चाहें तो जैसे हम लोग कोई सी चीज़ कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन हमको सस्ते में मिल रही है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर का व्यू जिन स्टॉक्स को लेके ऐसा होता है कि अभी उनको सस्ते में मिल रहा है, वो ज़्यादातर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो आपका वैल्यू स्ट्रैटेजी हो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी, तो वो थोड़ा सा एक विपरीत हो जाती है कि वहाँ पे जो एक नॉर्मल मार्केट जिन स्टॉक्स को लेके चल रही है उनसे कॉन्ट्रेरियन बेट ले रही है, उल्टा बेट ले रही है। तो अगर एक हम बड़े पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बात करें तो थोड़ा थोड़ा अगर आप दोनों का ही मिश्रण कर ले तो अच्छा रहता है, क्योंकि एक आपके डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है कि अगर कभी वैल्यू स्ट्रैटेजी डाउन हुई तो प्रॉबेबली कॉन्ट्रेरियन आपको हेल्प कर देगी या वाइस वर्सा। तो बाकी एक ग्रोथ बकेट के अंदर एक अच्छे फंड के लिए आप कभी भी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देख के ना चुनाव करें, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें और रोलिंग रिटर्न्स को देखें थोड़ा सा कि मार्केट के डिफरेंट फेजेस में, जिसको कहते हैं कि जब मार्केट नीचे था, जब मार्केट ऊपर था, तब उस फंड ने कैसे परफॉर्म करा है बाकी के फंड्स के उस कैटेगरी के कंपैरिजन में। उससे आपको एक अच्छा फंड चुनने में मदद मिलेगी। असम से शिखा हमारे साथ जुड़ी हैं। शिखा, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ सर, मेरा केवी मैच्योर होगा 2026 में 8 लाख का,
तो उसको उठा के मैं SWP करना सही रहेगा ना सीनियर सिटीजन में डालना सही रहेगा, ये मुझे जानना था। शायद ये SIP कहना चाहती है। हाँ जी, इधर शिखा जी मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इसके लिए आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको उस पैसे की आवश्यकता कब होएगी। आपने बीच में मेंशन किया SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और कहीं ना कहीं उस पैसे से आपकी इच्छा ये रहेगी कि आपको एक थोड़ा सा रेगुलर इनकम मिल जाए, और तभी आप SWP का भी नाम ले रही थी क्योंकि वो भी एक रेगुलर विड्रॉल इनकम से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप उसको बेशक SCSS में डालिए। जब भी एक गारंटीड इनकम की रिक्वायरमेंट होती है सीनियर सिटीजन के लिए, एक SCSS से अच्छा विकल्प और कोई नहीं है। गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, जीरो रिस्क होता है और आपको बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। आज की तारीख में 8.2% मिल रहा है। बट वहीं पे एक मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन देना चाहूंगा, जो कि आपको खाली इस FD के मैच्योरिटी वाले अमाउंट के लिए नहीं देखना है, आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए देखना है, जो कि आप अपना इनकम जनरेट करने के लिए मेंटेन कर रहे हैं, कि वो 100% फिक्स्ड इनकम में ना चले जाए। अगर आप SCSS करेंगे वो भी पूरा फिक्स्ड इनकम है। एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट 30%, 35% आपका इक्विटी में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इक्विटी में निवेश नहीं करेंगे तो होगा क्या कि अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट मिल रहा है और आप इनकम ले रहे, आपको अभी तो वो पूरा लगेगा, बट आज से कुछ साल के बाद, मान लीजिए 10 साल के बाद, इन्फ्लेशन की वजह से जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, ये अमाउंट शायद पूरा ना पड़ पाए आपको। और वहां पे इस अमाउंट को उससे मैच करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स ले, जो कि केवल और केवल इक्विटी से संभव है। और इसलिए थोड़ा सा पोर्शन आप इक्विटी में निवेश करें, जिसके लिए आप कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड ले सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का, और एक साथ उसमें पैसा निवेश ना करिएगा। कुछ समय में इसको डिपेंडिंग ऑन आपका जो अमाउंट है वो कितना बड़ा है, 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बीच में उसको स्प्रेड करके उस पोर्शन को इंडेक्स फंड में निवेश करिएगा और बाकी का आप SCSS में लगा सकते हैं। आइए कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई GST दरों और स्लैब का कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन बदलावों से छोटे और मध्यम किसानों को ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों पर GST दरों में कमी से खेती की लागत कम होगी और किसानों के लाभ में बढ़ोतरी होगी। श्री चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर GST कम कर दिया गया है, जिससे न केवल किसानों को लाभ होगा बल्कि रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की ओर रुझान को भी बढ़ावा मिलेगा। डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर GST हटाने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा और किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। श्री चौहान ने यह भी बताया कि कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, मुर्गी पालन GST छूट से काफी लाभान्वित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कृषि अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से हस्तशिल्प, चमड़े के सामान और डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। ये सुधार लखपति दीदी सहित कई महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और इस आंदोलन को नई गति मिलेगी। इन लाभों को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जिस ट्रैक्टर की कीमत 9 लाख रुपए हुआ करती थी, अब GST में कमी आने से किसानों को उसके लिए 65,000 रुपए कम चुकाने होंगे। और इसके बाद आइए सुनते हैं कि CII के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समिति के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने GST सुधारों के बारे में क्या कहा है। All of us in the industry are very enthused with the decision to review the GST rates, because lowering the GST tariffs, especially for items that were otherwise in the luxury bracket to what has now become daily needs, air conditioners or entry cars, our case is an example, will trigger a demand not just for the finished goods large companies but also for their supply chains that consists of several SMEs. This ripple effect that this kind of a triggering of demand will have will hopefully add to our GDP, especially in these times where we are facing some geopolitical headwinds. And we have our next caller from Ghaziabad. Amit, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Yeah, good evening. This is Amit. So,
So I'm looking. Can you suggest me some 2 or 3 multi-cap funds for a long term? And like secondly, how the size of the fund affects the investment strategy? Do we considering for example a Nippon multi-cap fund has a reasonable size. So I'm not sure do I need to can you help me to suggest how can I invest in which funds I should go for the investment in multi-cap funds for long term? Akar, I think this is a concern of many of the investors who call in that exploding or an increasing AUM concerns them. Please. Yeah, so I would say first of all, I mean, definitely when the AUM goes huge, it becomes a concern, but then we have to also see that what kind of category the fund belongs to. Is it a large cap fund? Is it a mid cap fund? Is it a small cap fund? Or is it a diversified flexi cap or a multi cap fund? So generally the concern arises in the case of small cap funds simply because there are fewer options over there and less opportunities to invest a huge amount of money. And this is the reason why probably you have noticed many of times that fund managers often put gates, or if you have to speak in simple language, they stop accepting money and investments in case of small cap funds when their size goes huge, simply because they are short of ideas where to invest. So if we talk simply about the diversified funds, when it comes to a flexi cap fund, they are generally around 70% into large caps, so one doesn't have to really worry about the AUM size. And if we talk about the multi-cap fund in specific, as you were mentioning, Nippon India small cap, so over there the mandate is that the fund must invest at least 25% in small caps, 25% in mid caps, and 25% in large caps. The other 25% is left to the discretion of the fund manager. So even here, if you look at that particular thing, at least around 50% of the money can be without mid and small caps, and then another 25% can be in mid caps. So I would say, I mean, unless and until you are getting any kind of problem or signal from the depreciating returns, which I believe is not the case in Nippon India multi-cap, because the fund, it's a wonderful fund. So one doesn't need to worry. And more often, whenever such kind of problems arises, the fund manager, they themselves put gates on the fund. We'll continue with Market Mantra further, but before that, let's take a short commercial break. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर मार्केट मंत्र, जिसमें हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ गुरुग्राम से देव। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि म्यूचुअल फंड की हमें नॉलेज नहीं है और मेरी अभी मैच्योरिटी पूरी ले चुकी है और 15 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। आप अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर लें। देव जी एक अनुरोध है देव जी आपसे। जीएसटी, माफ कीजिएगा, हमें देव जी की आवाज नहीं आ रही थी। एक अनुरोध है सभी श्रोताओं से कि जब भी आप कॉल करें, अपने रेडियो सेट्स की जो आवाज है, जो आपके पीछे चल रहा है, उसे जरा कम कर लीजिए, वरना वो डिस्टर्बेंस आती है और हम आपकी आवाज, आपके सवाल ढंग से सुन नहीं पाते। अगले कॉलर हैं दिल्ली से विनोद। स्वागत है मार्केट मंत्र में, अपना सवाल पूछें। सर, पूरी मार्केट मंत्र टीम को मेरे तरफ से नमस्कार जी। सर, मैं एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा कि मेरी पोर्टफोलियो में एक एसबीआई का स्मॉल कैप है और एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, और मैं इसमें एक मल्टी कैप और मिड कैप में से कोई एक लेना चाहता हूं और एक वैल्यू फंड लेना चाहता हूं। तो एक कुल मिला के क्या पोर्टफोलियो अगले 20 साल के लिए ठीक रहेगा? और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि मिड कैप चैलेंज फील कर रहे हैं कुछ, तो क्या उसकी जगह मल्टी कैप ले सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन से पोर्टफोलियो फंड होने चाहिए प्लीज? विनोद जी, आप जैसे ही एक मल्टी कैप फंड में निवेश करेंगे, वहां पे बाय मैंडेट आपका पैसा मिनिमम से मिनिमम 25% मिड कैप में लग जाएगा, 25% स्मॉल कैप में लग जाएगा, 25% लार्ज कैप में लग जाएगा, और जैसे कि अभी हम पिछले कॉल पे भी बात कर रहे थे, जो बाकी का 25% फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। तो जो अभी आपने इससे पहले फंड्स बताए, अच्छे फंड्स है, एक थोड़ा अच्छा पोर्टफोलियो लग रहा है, एक पराग का फ्लेक्सी कैप भी है, एसबीआई का स्मॉल कैप भी है। आप बिल्कुल मेरी समझ में एक मल्टी कैप फंड में निवेश ले सकते हैं। वहां पे आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा
मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा एक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में, क्योंकि आपका पैसा मिनिमम 50% मिड एंड स्मॉल कैप में रहेगा। तो एक थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो अग्रेसिव साइड पे चला जाएगा, बहुत मामूली सा, जिससे कि मिड एंड स्मॉल कैप आपको लॉन्गर टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स के लिए बूस्ट करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो मल्टी कैप फंड्स है, क्योंकि बाय नेचर इनमें मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, तो जब भी मार्केट डाउन टर्न्स आएंगे ये बहुत संभव है कि ये एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड से या मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा गिरे, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स का वो बाय इनहेरेंट नेचर है, जब भी मार्केट गिरता है तो अक्सर वो ज़्यादा नीचे गिरते हैं। बस तब आपको घबराना नहीं है और एक डिसिप्लिन तरीके में अपने इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखना है। The government says the sweeping GST reforms will strengthen the cooperative sector, make their products competitive, increase demand for their products, and increase the income of cooperatives. In a statement, Ministry of Cooperation said that the GST reforms will promote rural entrepreneurship, promote cooperatives in the food processing sector, and ensure affordable access to essential goods for millions of households. The ministry said the GST reforms will directly impact cooperatives, farmers, rural enterprises, and benefit more than 10 crore dairy farmers in the country, be it FMCG, textile, automobile, healthcare, the medical industry. So many industries are being directly impacted and benefited by these sweeping GST reforms, hailed as one of the biggest in the country ever. Bringing about the advantages these GST reforms will give the businesses as well as the people, let's hear the words of Mr. Deshraj Bharana, the Director of the Mobile and Electronics Equipment Export Promotion Council. The approval of GST 2.0 marks a landmark reform in India's tax journey. The simplification of two primary slabs, 5% and 18%, with a special 40% rate for luxury and sin goods, will bring much needed predictability, ease of compliance, and a stronger foundation for investment and growth across industries. This is a forward-looking reform that will support both businesses and consumers. जी, अब चले हम अपने अगले कॉलर के पास। गुरुग्राम से देव हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं रखता, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि एफडी हमारी मैच्योर हो चुकी है, 20 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो मैं ब्रेक करवाने के लिए सोच रहा हूँ कि अभी इसको करा दूं। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में जाने का भी कुछ इसकी जानकारी कैसे हम लोग उसके कैसे कर पाएंगे कि एफडी में बने रहें या म्यूचुअल फंड में बने रहें। एक सवाल हो रहा है कि जीएसटी इसे कम हो जाएगी तो जिन दुकानदारों के गोदाम में इतना माल रखा हुआ पहले से, 1 महीने में तो ये बिक नहीं जाएगा, 20 दिन में, तो ये रेट कैसे कम करके देंगे या वो कुछ कंफ्यूजन हमारे को बना के रखेंगे, ये सरकार इस पे निगरानी रखेगी? जो आपका पहला सवाल था एक एफडी और म्यूचुअल फंड के कन्फ्यूजन को लेकर, उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आमतौर में जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड का जिक्र करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादातर। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वो आपको पैसा कब चाहिए। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा केवल और केवल तभी निवेश करिएगा अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत 5 साल के बाद है। 5 साल से कम के लिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड सूटेबल नहीं रहता। इक्विटीज जो मार्केट है वो उसमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो उससे कम पीरियड के लिए उसमें निवेश नहीं करिएगा। एक अच्छा तरीका ये रहेगा कि जैसे आपको बिल्कुल भी अभी जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड्स की, आप एक अपने जिस बैंक में हैं आप वहाँ पे एक उनसे बात कर सकते हैं, या आप एम्फी की वेबसाइट पे जाकर के, जो कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के अपने एरिया का जो एड्रेस है पिन कोड डाल के वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे थोड़ा सा समझ के उनको ये कहिए कि आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं और आप एक इंडेक्स फंड से छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए। जी, और देखें सोने का क्या हाल रहा है। सोने की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल आया है। स्पॉट गोल्ड इस हफ्ते लगभग 3% बढ़कर $3,585 प्रति आउंस पर पहुंच गया। ये पिछले 3 महीनों में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की आशंका से ट्रेजरी यील्ड्स में भारी गिरावट आई है और अमेरिकी डॉलर को नुकसान पहुंचा है। ब्याज की कम दरों से कारोबारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे आमतौर पर शेयर बाजार के लिए अच्छा माना जाता है। Global gold prices registered their best weekly gain in 3 months as expectations of
A Federal Reserve rate cut bolstered bullion's appeal. Global crude oil prices fell last week as weak US jobs report dimmed the outlook for energy demand. And now, before we close, first of all, thank you so much, Akar, for being here with Market Mantra. Thank you, Akar. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. India reaffirms its commitment to an open and inclusive WTO-led trading system, highlights need for export diversification and building resilient supply chains. GST rates revisions will have a significant impact on the agriculture sector, says Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan. And global gold prices jumped 3%, while Brent crude oil prices fall over 2% last week. And that's it in this edition of Market Mantra. Market Mantra.